Okay, good afternoon, everybody. First, we see here what we have seen in the last lecture, what we have completed in the last lecture, that are the disciplines of civil engineering. That part we have covered. In that, first we will discuss little bit about the completion of disciplines of civil engineering, and afterwards we will move towards the one by one discipline. Okay, disciplines of civil engineering. From that, we have seen these total disciplines: the architecture and town planning, building materials, construction technology, environmental engineering, geotechnical engineering. After that, we have seen hydraulics, water resource and irrigation engineering, remote sensing and GIS, structural engineering, surveying, and last one is the transportation engineering. These all are the disciplines of the civil engineering. Okay. After that, now we will see here. From that, we'll see the first discipline of the civil engineering is a building planning and the construction. What is the name of this? Building planning and the construction. Building planning and the construction. What is the building planning and how it is useful to do the building planning and the construction? That is, the civil engineers are concerned with many types of the structures, of which buildings are prime importance. Buildings are planned according to the fundamentals of principles of planning and bylaws of local municipal bodies. Building planning requires basic knowledge of principles of architecture. Buildings may be residential or public building like schools, colleges, government office, hospitals, etc. And they are designed according to need of specific outcomes and the purposes. Okay, you can see here the picture below this, whatever the written building construction and building planning and construction. Below this there is a one picture. In that picture there are the plans, you can see this. But building construction and बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या आता है? जो भी हमें क्या करना है, प्लान करना है, हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है या हम प्लान कर रहे हैं, नहीं तो हम स्कूल का बिल्डिंग का प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं तो हम कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, या तो स्कूल बिल्डिंग है, या तो हॉस्पिटल है, जो भी है हम उसका क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, हमें वो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका प्लानिंग बनाना है। उसके पहले हमें प्लान बनाना चाहिए। प्लान मतलब क्या? ये जो प्लान होता है उसमें हम क्या करते हैं, एज पर द आर्किटेक्चरल प्लानिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, जो प्लानिंग आते हैं उसमें एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, प्राइवेसी, रोमिनेस, ये सब जो एस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट है, रोमिनेस है, ये जो प्रिंसिपल्स है, इसके प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, ये प्लान बनाना चाहिए। मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो डायरेक्शन रहती है हमारे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसी डायरेक्शन के हिसाब से हम क्या करते हैं, ये जो बिल्डिंग रहती है इसका प्लान बनाते हैं। किचन कौन से साइड को चाहिए, या तो नॉर्थ में को बेडरूम चाहिए क्या, नहीं तो कहाँ हम हॉल प्रोवाइड करते हैं, एंट्रेंस कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए, ये सब जो है, ये हम कैसा करते हैं, एज पर द फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लानिंग। ओके, दैट विल based on this we confirm about the in which side that compartment will become. Okay, in the building there are the 1 bhk और 2 bhk, there are the bedroom कौन से साइड को चाहिए, हॉल कौन से साइड को चाहिए, एंट्रेंस कौन से साइड को चाहिए, या तो हमारा देवघर है तो वो कौन से साइड को चाहिए, तो WC बात है वो कौन से साइड को चाहिए, ये जो सब प्रिंसिपल, ये जो प्लानिंग है बिल्डिंग का, वो सब प्लानिंग हम किस पर डिपेंड करते हैं, that building plannings are planned according to the फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लानिंग। इसमें से डिफरेंट प्लानिंग एस्पेक्ट आते हैं, वहाँ जो प्रिंसिपल्स है वो एस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट है, प्राइवेसी है, रोमिनेस है, सर्कुलेशन आता है, सैनिटेशन आता है, वो ये जो है ग्रुपिंग आता है। तो ये सभी का उधर क्या करते हैं, हम इन डिटेल में स्टडी करते हैं, और वो जो है दैट इज नथिंग बट अ बिल्डिंग प्लानिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए जो भी
प्रिंसिपल्स है वो हम यूज करते हैं, तो उसके बाद वहाँ बायलॉज भी आते हैं। वो कहाँ पर होते हैं? बायलॉज ऑफ लोकल म्युनिसिपल बॉडीज। मीन्स हम सिटी में अभी घर वहाँ हम क्या कर रहे हैं? बिल्ड कर रहे हैं, तो उधर जो भी म्युनिसिपल बॉडीज रहता है, तो उनके हिसाब से उधर क्या रूल्स रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को हम इधर क्या करना चाहिए? अप्लाई करना चाहिए। वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं? वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो ही हम वहाँ क्या कर सकते हैं? हमारा घर है वो बना सकते हैं। समझ आया क्या आपको? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, building planning and the construction. First read, civil engineers are concerned with many types of the structures of which buildings are of prime importance. Buildings are planned according to the fundamental principles of planning and bylaws of local municipal bodies. मतलब हमें जो भी बिल्डिंग अभी क्या करनी है, बनानी है, तो उसके लिए पहला फर्स्ट स्टेप जो रहती है, तो हमें क्या करना चाहिए? उधर वो जो बिल्डिंग का स्पेस है, वो स्पेस के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? वो प्लान बनाना चाहिए। जितना भी हमें होम चाहिए, जो मतलब कितने रूम चाहिए, कितने ऑक्यूपेंट है, कितने पर्सन है उधर रहने वाले, वो सभी का हमें पहला क्या करना चाहिए? जजमेंट लेना चाहिए। कितने लोगों के लिए कितने रूम चाहिए, या तो कितने लोग हैं उसके हिसाब से हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें बनाना चाहिए। तो ये सब जो आता है, ये सब किस में आता है? तो बिल्डिंग प्लानिंग में आता है। और वो सब हम जो करते हैं, ये किस में करते हैं? तो बिल्डिंग प्लानिंग एंड द कंस्ट्रक्शन। ठीक है। व्हाट इज द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग प्लानिंग एंड द कंस्ट्रक्शन? बिल्डिंग प्लानिंग में हम क्या करते हैं? जो भी प्रिंसिपल्स है, एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, प्राइवेसी, रूमीनेस, ये जो प्रिंसिपल्स है, ये बनाए हैं, वो सब प्रिंसिपल्स हम क्या करते हैं? जब बिल्डिंग का हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, उस टाइम यूज करते हैं। पहला जो बेसिक कंसेप्ट रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? वहाँ कितने भी ऑक्युपेंट है, वहाँ कितने लोग है रहने वाले हैं, उसका सपोज इफ त्या ठिकाणी बघा एक स्पेस आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला करायचं आहे, इफ वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हॉस्पिटल बिल्डिंग। हॉस्पिटल बिल्डिंग है तो कौन से ये सिटी में है या तो विलेज में है, तो उसका हमें पहला जजमेंट लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट का आता है, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है या तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो कितने फ्लोर पर, हाँ, कितने फ्लोर हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं ये बिल्डिंग के, और किसने 2 BHK है या 1 BHK, वो सभी का हम क्या करते हैं? पहला प्लानिंग में या तो बिल्डिंग प्लान में उसका सब क्या रहता है, हमें वो सब इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसका प्लान करते हैं। प्लान में से भी उधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो सभी का हम जजमेंट इधर लेते हैं कि रोड साइड किधर है, ड्रेनेज लाइन है तो कौन से साइड को है, कि कितना का उधर एक्सकैवेशन करना पड़ेगा, उधर टाइप ऑफ रोड है तो कौन से टाइप का रोड है, ये विलेज रोड है या तो सिटी रोड है, वो सभी का इधर हमें क्या करना पड़ता है? जजमेंट लेना पड़ता है। और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? आर्किटेक्चरल प्लानिंग करते हैं। और जो आर्किटेक्चरल प्लानिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? एज पर द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन द डायरेक्शन, इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन, एज वेल एज वट एवर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, उसका बेस लेके जो भी प्लानिंग हम करते हैं बिल्डिंग का, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर। और ये जो बिल्डिंग का प्लानिंग करते हैं, उसके लिए प्लानिंग हम बिल्डिंग का रेसिडेंशियल के लिए भी कर सकते हैं, पब्लिक के लिए भी कर सकते हैं, लाइक स्कूल्स और द कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स है उधर भी कर सकते हैं, बैंक है उधर भी हम कर सकते हैं। एंड दीज आर डिजाइनड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्पेसिफिक ऑक्यूपेंट एंड द पर्पजेस। मीन्स ये सभी जो बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसका सभी बिल्डिंग का एक एक कोई तो बेसिक एम रहता है, पर्पज रहता है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं बेस्ड अराउंड द स्पेसिफिक ऑक्यूपेंट। एक स्कूल रहता है, एक हॉस्पिटल है, तो क्या होता है उधर जो भी स्टूडेंट्स है वो भी ज्यादा रहते हैं, तो उसका ऑक्यूपेंसी कितना है? एक क्लास है, एक क्लास में समझ लो आप 70 स्टूडेंट रहने चाहिए, तो 70 स्टूडेंट के लिए कितने बेंचेस चाहिए? उसके हिसाब से हमें क्या करना है? एक बेंच का है तो एक बेंच का डायमेंशन क्या है, एक बेंच पर कितने स्टूडेंट बैठने वाले हैं, वो सभी का, एक बेंच ऐसा है तो 70 स्टूडेंट के लिए लगने के लिए कितने बेंच चाहिए, और उसमें उनको क्लास में अच्छे से बैठने के लिए, अच्छे से सर्कुलेशन के लिए, अच्छे से उनको सभी बोर्ड है वो भी सेंटर में कैसे प्लेस करना चाहिए, ये सभी जो रहता है वो बिल्डिंग प्लानिंग में रहता है। ये जो मैं बता रही हूँ, एक क्लास का प्लानिंग मतलब एक रूम का प्लानिंग इधर भी आता है, दैट यू विल बी कम अंडर द बिल्डिंग प्लानिंग एंड द कंस्ट्रक्शन। बट फॉर एवरी
building, and for every building is planned according to the principles of planning only. And there are the some of the bylaws which are come from the local municipal bodies, and that will be satisfied by the building. That is also one criteria over there. Okay, we'll see what is that bylaws in the next slide. Okay, all of you understand this, what is the building planning and construction? समजलं का सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. बघा, बिल्डिंग प्लॅनिंग अँड कन्स्ट्रक्शन या ठिकाणी तुम्हाला फक्त इफ यू सी दिस पिक्चर बेस्ड ऑन दिस यू विल गेट द ऑल द आयडियाज. दे प्लॅन मध्ये बघा, इन दिस पिक्चर दे हॅव शोन हिअर द दॅट प्लॅन पिक्चर इज हिअर. बेस्ड ऑन दिस प्लॅन यू विल गेट आयडिया अबाउट द प्लॅनिंग, मतलब द बस्ट वी मेक द प्लॅन ऑफ आवर what plan of the building. Okay, at the starting stage that will become under the building planning, and after the building plan is prepared, after that we will go for the construction. Next slide, will come towards the next slide now. बघा, what is the building bylaws? In last slide काय बघितलं आपण? We have seen the building bylaws are there and principles of planning are also there. Based on these principles of planning and the bylaws, both are very important for the construction or the planning of the building. So that what are these bylaws? We'll see here. What basic information we'll see in detail. There is a, for second year there is a building planning and the design. Building planning and design subject is there. In that subject there is a in detail information is given about the what are the different bylaws and how to do the building plan, how to make the building plan for the different types of the bungalows. स्कूल बंगलो असेल त्या ठिकाणी, किंवा तुमचा बँक बंगलो असेल त्या ठिकाणी, बँक असेल किंवा तुमचे स्कूल असेल, हॉस्पिटल्स असतील, वॉट एव्हर टाईप ऑफ द बिल्डिंग, एखादं तुमचं शॉप असेल तर त्याचं कसं प्लॅनिंग करतात, हा पूर्ण जो स्टडी आहे, दिस होल स्टडी इज इन्क्लुडेड इन टू द सेकंड इयर सब्जेक्ट, दॅट इज द बिल्डिंग प्लॅनिंग अँड द design drawing. So you can see here the basic information about this. What are the building bylaws? तर building bylaws आहेत ते काय आहेत बघा. तर the rules and the regulations framed by town planning authorities covering the requirement of building, ensuring safety of the public through open spaces, minimum size of rooms and height and area limitation, and are known as building bylaws. What is mean by the building bylaws? That building bylaws are related to height of the building, again there is a minimum size of the rooms, height of the, again there is a height and area limitations are given. म्हणजे काय असणार आहे बघा, आता एखादी सिटी आहे किंवा विलेज आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही बिल्डिंगचे काय करतात, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग असतात. मग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आहेत म्हणल्यानंतर जो खालचा एरिया आहे तो कमी असतो, वरती तुमचे काय 10, 15, 20, 25 असे जे काय आपण बिल्डिंगचे काय करू शकतो, आपण फ्लोअर्स वाढवत जातो. पण त्याला काहीतरी एक लिमिटेशन आहे. हे लिमिटेशन कुणी घातलेलं आहे? दॅट लिमिटेशन इज गिवन बाय दिस गव्हर्नमेंट, दॅट अथॉरिटी, दॅट इज द टाउन प्लॅनिंग अथॉरिटी. तर त्यानुसारच आपल्याला काय करायला लागतं, वी हॅव टू मेक दॅट that 1 story, 2 story, that is a floor 1, 2, 3, 4 is based around the whatever the bylaws of the town planning authorities. Okay, rules and regulations framed by the town planning authorities covering the requirements of building, ensuring safety of the public through open spaces, minimum size of rooms, height and area limitations are known as building bylaws. नेक्स्ट बघा काय म्हणते, rules and regulations largely regulate the building activities should be functional to get disciplined growth of building and the better planned development of towns and cities. In the बघा, rules and regulations are largely regulate the building activities should be formulated to get disciplined growth of building and the better planned development of towns and the cities. बघा, टाउन आहे, इफ टाउन है तो टाउन में भी हम बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग है, तो सभी बिल्डिंग को हमने क्या किया है उधर, वो जो टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज है उन्होंने क्या किया है उधर, बहुत सारे क्या है उधर जो बाइलॉज बनाए हैं, तो वो बाइलॉज से हिसाब से ही हमें क्या करना चाहिए, उधर बिल्डिंग का प्लानिंग करना चाहिए एज वेल एज कंस्ट्रक्शन भी करना चाहिए. ओके, और वो नहीं किया तो उसको उधर क्या करना चाहिए, जो भी अथॉरिटीज है वो उन पर क्या कर सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं कि आपने ऐसा किया तो भी वो आपको ये रॉन्ग है,
ऐसा है। रोड साइड है तो रोड साइड पर कौन कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, ये भी है। अभी इधर एक पिक्चर है, वो देख सकते हैं, बिल्डिंग एनवेलप, यू कैन सी दिस बिल्डिंग एनवेलप पिक्चर, इन दैट पिक्चर यू कैन सी दिस मैक्सिमम कवरेज ऑफ बिल्डिंग। वो जो बिल्डिंग, ये व्हाइट कलर का स्पेस दिखता है आपको, वो जो डायग्राम है इसमें से व्हाइट कलर का स्पेस है, वो हमारी बिल्डिंग है, आप ऐसा समझो। वो जो ब्लॉक दिख रहा है वो हमारी क्या है, बिल्डिंग है। तो वो बिल्डिंग के बाहर जो भी डिस्टेंस है वो देख रहे हो आप, देख सकते हैं फ्रंट साइड, बैक साइड या तो रियर साइड, आप प्रॉपर्टी लाइन ये आप देख सकते हैं। तो वो जो भी अभी सिटी में है, हम सिटी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे बिल्डिंग का प्लान कर रहे हैं। तो आप उधर देख सकते हैं कि जो भी इधर है हमारी प्रॉपर्टी लाइन, पहला हम क्या करते हैं, मार्क करके लेते हैं। पहला जितना भी आपके कमांड में है तो उतना आप क्या करते हैं, मार्क करके लेते हैं। जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके अंडर है वो सिर्फ पहला क्या करने का, मार्क करने का। उसके बाद जो भी डिस्टेंस है वो बिल्डिंग के बाजू में, बिल्डिंग के पीछे, बिल्डिंग के आगे, जो भी फ्रंट बिल्डिंग का फ्रंट व्यू रहता है, जो भी बिल्डिंग का फ्रंट साइड है, जो भी रोड साइड है, उस साइड कितना रखना चाहिए, पीछे कितना रखना चाहिए, वो दोनों साइड में कितना रखना चाहिए, ये सभी के लिए क्या रहता है उधर, ये सभी के लिए उधर क्या रखता है, बायलॉज रहते हैं। तो वो बायलॉज यूज करके हमें क्या करना है, हमारा बिल्डिंग का प्लानिंग करना चाहिए। दैट विल बी कम अंडर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड द प्लानिंग। एंड ये रूल्स सभी को रहते हैं, जो भी बिल्डिंग भी कास्ट करे, बनाना चाहते हैं, प्लानिंग है तो वो प्लानिंग, वो टाउन प्लानिंग के अथॉरिटीज उन्होंने जो बायलॉज बनाना है उसके हिसाब से ही करना चाहिए। दैट विल बी कम अंडर द बिल्डिंग प्लानिंग एंड द कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग प्लानिंग होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस? समजलं का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नो प्रॉब्लेम. पुढे जाऊयात, नेक्स्ट स्लाइडला जाऊयात का, नेक्स्ट डिसिप्लिनला. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक आहे. बघा आणखीन एकदा आय विल डिस्कस अबाउट दिस अँड विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. तर बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन म्हणजे काय असतं, बिल्डिंग प्लानिंग में हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लान बनाते हैं, जो भी हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल है या तो कौन सा भी टाइप का बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, या तो उधर आप देख रहे होंगे कि शॉप है और बैंक बिल्डिंग है, नहीं तो इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो वो सभी जो ये रहता है, हमारा जो बेसिक एम रहता है कि इस स्पेस पे हमें क्या करना है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है। तो उसके हिसाब से उधर कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उधर कितना एरिया में से कितने ऑक्यूपेंट है, उधर ऑक्यूपेंट का स्टडी भी हम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उधर जो उसका पर्पज है वो भी उधर हमें कंप्लीट होना चाहिए। उसके हिसाब से वो जो भी आर्किटेक्चरल प्लानिंग है उसका हम यूज करते हैं। जो भी बायलॉज है वो भी म्यूनसिपल बॉडीज ने बनाए हैं, वो भी सब बायलॉज प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग वो सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो ही हमारी बिल्डिंग क्या होगी, बिल्डिंग अच्छे से बन जाएगी। दैट विल बी कम अंडर एज अ बिल्डिंग प्लानिंग under the fundamental principles of the planning and the bylaws of local municipal bodies. उसके बाद जो आता है, जो बायलॉज है, हाइट के लिए बायलॉज रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए बायलॉज रहता है, जो भी फ्रंट साइड है वो रोड साइड से कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, वो दोनों साइड में ही, जो रेयर साइड है, फ्रंट साइड है, और तो दोनों साइड को भी, ऐसा चार ही डायरेक्शन में भी क्या रहता है उधर, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके हिसाब से हम प्रॉपर्टी लाइन के अंदर भी हमें क्या रखना चाहिए, सेटबैक डिस्टेंस रखना चाहिए। वो जो सेटबैक डिस्टेंस है वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए एज पर द town planning authorities demand. Okay, that will be all this part is come under these building constructions and the planning under the bylaws. Next point we'll see what is the structural engineering. We'll read this first, what is the structural engineering, and after that we'll discuss in detail. This branch of civil engineering deals with the structural analysis and design of structures. The branch of civil engineering deals with structural analysis and design of structures. Full stop. The structural analysis is done to calculate the stresses in structural component on the basis of loads acting on the structure. Baka, what is mean by the structural engineering? That structural engineering is the basic branch of the civil engineering, which deals with the analysis
design of any type of the structure, and that structural analysis is also used to calculate the stresses which are developed on the every component of the building or the any structure, and that will be come under बघा या ठिकाणी you can see here the structural engineering is the branch, is very important branch as far as in the civil engineering department. You can see that structural engineering is come under the civil engineering, but it is a part of design of any type of building, design of any type of the building, analysis of any type of the building. You can take any component of the building, and if load is applied over there, then we can calculate the stresses, that all part, that whatever the load, whatever the stresses on the building, that all reactions are there, that all part will come under the structural engineering. Okay, बघा next point is the sections of structural element like beams, columns, slabs, etc etc are designed. Structural analysis requires much calculations, hence advanced computing softwares are used to carry out the structural analysis and the design. बघा you can see a simple building, you can see a simple building from top to the bottom, from roof, after that there is a columns, again beams are there, walls are there, you can take a slab also, again there is a foundation. For every component of the building there is a design, there is a analysis, and that all part related to this design, again analysis, again the calculation of the stresses on the every component, that all come under the structural engineering. समजलं का? देखो अब ये जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच है, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंडर क्या क्या आता है, जो भी हम डिजाइन करते हैं कौन सी भी बिल्डिंग है, तो इसको हम क्या फर्स्ट क्या करते हैं, वो प्लान बनाया हमने, वो जो प्लान बनाते हैं वो प्लान हम जो पहले स्लाइड में हमें देखा था बिल्डिंग प्लानिंग एंड द कंस्ट्रक्शन, तो वो जो बिल्डिंग प्लान बनाते हैं, वो जो बिल्डिंग प्लान रहता है वो हम वो मैन्युअली हम पेन पेंसिल से बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो पेन पेंसिल पर बनाया हुआ वो जो ड्राफ्ट रहता है, वो ड्राफ्ट हम किस में यूज कर सकते हैं, किस में ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर रहता है उसमें भी हम कर सकते हैं। और ये जो प्लान था वो सेम प्लान हम इस पर ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर से, जो भी स्टैड प्रो है, ईटैब सॉफ्टवेयर है, ये जो आंसिस सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर हम ये सॉफ्टवेयर यूज करके हम प्लान भी बना सकते हैं, और ये प्लान के ऊपर हम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बना के उसका एनालिसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं। डिझाईन करतात म्हणजे काय करतात, डिझाईन व्हॉट इज मीन बाय द डिझाईन, तर बघा त्या ठिकाणी प्रत्येक बिल्डिंगच्या कंपोनंटला तुम्ही बघितलं असेल, बिल्डिंग कंपोनंट व्हॉट आर द बिल्डिंग कंपोनंट, देयर इज अ स्लॅब, रूफ असेल, स्लॅब असेल, वॉल, देयर इज अ कॉलम, देयर इज अ बीम इलेमेंट, देयर इज अ फाउंडेशन, दिस ऑल आर द कंपोनंट्स ऑफ द बिल्डिंग, हे तुम्ही बघितले असेल. बट whenever these components are come, for every component there is a steel reinforcement is used, आता स्टील एंड द कंक्रीट, कौन से टाइप का कंक्रीट यूज करना है, कौन से टाइप का स्टील यूज करना है, कितना स्टील यूज करना है, कितने बार्स यूज करने हैं. आपने देखा होगा ना, आपका घर जब कास्ट करते हैं तो उस टाइम वो जो पहला स्टील रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, उसके बाद फॉर्मर को वो लगाते हैं, वो फॉर्मर के बाद उसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट पेस्ट कंक्रीट उसमें डालते हैं, और वो जो है फॉर्मर है तो वो और लगाते हैं एक फार्मर के सेटिंग होने के बाद हम वो फार्मर निकालते हैं, और उसके बाद हम उसको वाटर स्प्रे करते हैं, उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा. फर्स्ट वी प्रिपेयर दिस कॉलम एंड आफ्टर दैट वॉट एवर द वॉल ब्रिक वॉल जो रहती है वो उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं. ये जो रहता है ये सब किसके अंडर रहता है, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में रहता है. तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डिजाइन एनालिसिस ऑफ द एनी स्ट्रक्चर फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, फ्रॉम स्लैब टू द बॉटम. इसमें क्या करते हैं, जो स्लैब का डिजाइन है वो करते हैं, स्लैब के डिजाइन में कौन से टाइप का स्टील यूज करना है, कौन सा कंक्रीट यूज करना है, अगेन अगेन स्टील बार यूज करने हैं तो कौन से डायमीटर के यूज करने हैं, ये सब जो डिजाइन रहता है, स्लैब पर कितना लोड आता है, उसका उस पर स्ट्रेसेस कौन से आते हैं, कहाँ स्ट्रेसेस ज्यादा आते हैं, वहाँ बीम है तो बीम पर कहाँ लोड ज्यादा एक्ट होता है, बेंडिंग बीम का किधर आता है, मतलब ज्यादा स्ट्रेस किधर आता है, ये जो स्टडी है. कॉलम है तो कॉलम का बिल्डिंग का पूरा लोड कौन लेता है, सो कॉलम ले रहा है, तो कॉलम पर ये टोटल लोड कितना आता है, तो कॉलम का कॉलम में जो स्टील रेनफोर्समेंट हम यूज करें तो वो कितना कैसे चाहिए, तो उधर कौन से डायमीटर का यूज करना चाहिए. ये जो सब डिजाइन रहता है, वो एनालिसिस रहता है, वो सब हम किस में करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है
रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। उसमें क्या क्या आता है वो स्टैड प्रो बताया मैंने। ऑटोकैड ये बेसिक सॉफ्टवेयर है बिल्डिंग प्लानिंग के लिए। ईटैब सॉफ्टवेयर भी हम यूज करते हैं फॉर द एनालिसिस एंड द डिजाइन ऑफ द एनी स्ट्रक्चर। सो दैट इज द सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट लाइक बीम्स कॉलम्स स्लैब आर डिजाइन्ड। Structural analysis requires much calculations, hence advanced computing softwares are used to carry out the structural analysis and the design. All of you understand this? समजलं का तुम्हाला स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आवाज कमी येतोय, समजलं का? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. It includes design of reinforcement, cement concrete that is RCC and steel structures, the design of multi-story building, towers, again retaining walls, water tank, bridges, required skills and knowledge of the structural engineering. बघा इन एनी टाइप ऑफ द बिल्डिंग, कौन से भी टाइप की बिल्डिंग हो, उधर हम ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या तो डैम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्यों और रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या तो हम वाटर टैंक का डिजाइन कर रहे हैं, रिटेनिंग वॉल कर रहे हैं, टावर्स है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये सभी का हम जब डिजाइन करते हैं तो उधर हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। उधर हम क्या करते हैं जो लोड्स है उसका कैलकुलेशन करने के लिए, जो स्ट्रेसेस है वो कैलकुलेट करने के लिए और उसका पूरा जो डिजाइन रहता है वो भी हम ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर ही यूज करके हम करते हैं। समझ आया क्या? जो भी सब सॉफ्टवेयर है, वाटर टैंक का भी, वाटर टैंक जो आपने देखी होगी हर गांव में एक वाटर टैंक रहता है, वो वाटर टैंक में पूरा क्या रहते हैं कॉलम रहते हैं, कॉलम के बाद ऊपर एक बीम्स भी रहते हैं, ऊपर क्या रहता है टैंक रहता है, सर्कुलर टैंक होता है। वो टैंक का भी कौन सा भी टाइप का सर्कुलर है या तो स्क्वायर है नहीं तो रेक्टेंगुलर भी टैंक रहता है। तो वो जो टैंक पर जो भी वाटर रहता है तो पूरा जो टैंक है तो उसका भी डिजाइन, जो भी कॉलम्स है बीम्स है वहाँ तो वाटर टैंक है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें वाटर डाले तो उतना कितना लोड ये कॉलम पर आता है, ये जो स्टडी रहता है और कौन सा कंपोनेंट पर ज्यादा स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसके हिसाब से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाना, उसका स्टील रेनफोर्समेंट बढ़ाना, ये सब किस में आता है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आता है। तो इसके लिए जो आरसीसी है दैट इज द रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इट इंक्लूड्स द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट एंड द स्टील स्ट्रक्चर। ये आरसीसी मतलब हमारी जो बिल्डिंग है इसको हम आरसीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन जब गर्डर आता है, गर्डर मतलब अभी देखो ब्रिज है लेकिन स्टील ब्रिज है, स्टील उधर ब्रिज है लेकिन वो क्या है किया है स्टील का किया है। नहीं तो आपने देखा होगा वर्कशॉप में वगैरह वो सिर्फ ट्रस लगता है, ऊपर ट्रस रहता है, स्टील के कंपोनेंट जब रहते हैं उसका भी डिजाइन वो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आता है। कौन सा कंप्रेशन मेंबर है, कौन सा टेंशन मेंबर है, मतलब कौन से कंपोनेंट पर ज्यादा लोड आ रहा है, कौन से कंपोनेंट पर कम लोड आ रहा है, वो सब जो आता है वो भी स्टील स्ट्रक्चर में भी आता है। समझ आया? दैट स्टील स्ट्रक्चर पार्ट as well as concrete part is come under the structural engineering। एंड ये सभी जो डिजाइन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, टावर्स है, रिटेनिंग वॉल्स है, वाटर टैंक है, नहीं तो ब्रिज है, ये सभी जो स्ट्रक्चर्स है ये सभी स्ट्रक्चर का जो भी एनालिसिस है डिजाइन है अगेन जो वो सब किस में हम करते हैं यूज करके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का यूज करके सॉफ्टवेयर में करते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर है उसका नाम भी बताया, स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर रहते हैं, नहीं तो ईटैब सॉफ्टवेयर रहते हैं, आंसिस सॉफ्टवेयर रहते हैं, कौन से भी सॉफ्टवेयर है ये यूज करके हम क्या करते हैं उसका एनालिसिस एंड द डिजाइन करते हैं। दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। एक कौन से भी एक कंपोनेंट लिया हमने दो, अपने अप्लाइड मैकेनिक्स में भी अभी सर ने स्टार्ट किया होगा, एक बीम कंपोनेंट लिया और आपने लोड अप्लाई किया उधर, तो वो जो लोड है ये जो बीम एलिमेंट का साइज है शेप है वो हम क्या करते हैं वही सेम हम स्टैड प्रो ये सॉफ्टवेयर में है निकालते हैं। और आपके सर ने जो भी 20 किलो न्यूटन या तो 30 किलो न्यूटन ऐसा लोड उस पर अप्लाई किया है तो वो लोड उधर हम अप्लाई कर सकते हैं और वो अप्लाई करने के बाद उसका उस पर कितने स्ट्रेसेस आते हैं वो भी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड विच वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। इज इट ओके टू ऑल? समजलं का सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस? Yes, Ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बघा
what we have discussed today, that I will complete within 2 minutes that part. मगर building planning and the construction, what is mean by the building planning and construction? हम जो building planning करते हैं वो किसके हिसाब से करना चाहिए, जो भी fundamental principles of planning है उसके हिसाब से वो हमें करना चाहिए, और जो भी building bylaws है उसका यूज हमें उधर करना चाहिए, that is the first point. और उसके हिसाब से हम public building या तो private building, both type of the building we can make plan, such a types of the building we can make plan as well as we can construct. स्कूल बिल्डिंग है, कॉलेज है, तो गवर्नमेंट ऑफिस है, बैंकिंग है, हॉस्पिटल्स है, ये सभी टाइप के बिल्डिंग का हम प्लान फर्स्ट बनाते हैं. और वो जो प्लान बनाना है वो प्लान हम करने के लिए बेसिक जो प्लान है हम पेन पेंसिल यूज करके हम हमारे पेज पर बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो प्लान है रफ प्लान है, वो रफ प्लान हम उसके बाद फिक्स करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर का नाम है AutoCAD, उसमें हम प्लान बनाते हैं. Okay, that are in this picture already they have shown here, that AutoCAD plans they have shown in that picture. After that you can see what are the bylaws. जो है वो जो टाउन प्लानिंग के अथॉरिटीज रहते हैं उन्होंने क्या किया है, उधर डिफरेंट टाइप्स जो सिटी है उसके हिसाब से क्या किया है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हमारे बिल्डिंग का हाइट, एरिया, वो सब जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए. उसके बाद हमने देखा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with the analysis and design of any type of the structure by using the different types of the softwares. यहाँ तक हमने आज के लेक्चर में देखा. रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.